Now we are on the DRAM. SRAM we have completed. SRAM, once again I am recalling just for your information. SRAM can be designed by two MOSFETs. This is the first diagram. The second one is a 4 transistor SRAM designing, and the third one is a 6 transistor SRAM. All three are important. अगर शॉर्ट नोट तुम्हारे 10 मार्क्स के आसपास है तो ये तीनों डायग्राम्स बना के इनका एक्सप्लेनेशन दोगे. देन योर पर्टिकुलर I must say answer is justified. Instead of 6 transistor, it could be designed like 8 transistor, 10 transistor and more transistor as per the bit requirement. ठीक है. Application and uses हो गया. Now DRAM, dynamic random access memory. So naturally it is benefited as compared to SRAM. So it requires a number of transistor per bit and it is difficult to cost effectively scale for the large memories. DRAM जो है that uses MOSFET capacitance to store data bit and the transistor per bit cost is approx 1. Okay, these are the normal points. और अपन ने डिफरेंस में कंपैरिजन देख ही लिया है, सो नो नीड टू डिस्कस दिस. डायरेक्टली वी विल सी एज ऑफ DRAM is its structural simplicity. Only one transistor and a capacitor can require per bit. Means डिजाइनिंग जो SRAM की why it is a cost effective manual time, क्योंकि इसकी डिजाइनिंग बहुत ईजी है. एक सिंगल कैपेसिटेंस और मॉस से भी हम इसको डिजाइन कर सकते हैं. एंड द कंटेंट ऑफ द सेल इज लॉस्ट ड्यूरिंग ईच रीड ऑपरेशन एंड हैज टू बी रिटन आफ्टरवर्ड्स. ये इसका एक डिसएडवांटेज है कि जो भी कंटेंट है वो लॉस हो जाता है रीड ऑपरेशन में और उसको रीराइट करना पड़ता है. And in contrast, we can say DRAM superior density, reduced cost is make them very popular in the designing of electronics product. So now first one is a 1 transistor DRAM. इसमें भी मैं 2 diagrams और 2 इस designing बताऊंगी. One is a 1 transistor DRAM and another is a 3 transistor DRAMs. So DRAM is organized row by column matrix. The matrix is stored in a 1-bit word and N is determined by number of address lines available. And 1 transistor and 1 capacitor that is for the storage. And the transistor passes the stored value to the data bus with select line. Select line का भी जहाँ तक बात आती है, काय का नितेश चौहान सर से बात करिए. The select line is simultaneously selects the all transistors along the some row, causing data to be placed on the column lines corresponding to each selected cell. ठीक है. This is the diagram. इसी को अपन ने डिजाइनिंग में तो अपन ने 3 ट्रांजिस्टर DRAM बनाया है. जो स्कीमेटिक है प्रैक्टिकल में तुम्हारा DRAM का, उसमें अपन ने 3 ट्रांजिस्टर बनाया है. बट ये वाला भी DRAM तुम्हारा जस्टिफाई है. यहाँ बिट लाइन होती, यहाँ लिखा नहीं है इन्होंने. हियर इज अ बिट लाइन एंड हियर इज अ वर्ड लाइन. WL एंड VL तुम्हें हर सर्किट्स में मिलेगा. इसको फटाफट शॉर्ट में बना लो, नहीं तो उस टाइम बना लिया था तो रहने दो, स्क्रीनशॉट ले लो. ठीक है. It requires data and cells to be periodically refreshed the stored bits of information. ठीक है. And one column is finally selected for the connection to the output. And this type of cell is the basis for the most high density DRAMs. ठीक है. ये सर्किट है जो अपन ने वहां बनाया. ये बनाने के ये तो 2 मिनट में बन जाएगा. ये भी बना लो तुम और वो भी बना लो. फिर अपन लिटिल बिट इसकी वर्किंग देखते हैं. Suppose it is very simple. अब ये 3 ट्रांजिस्टर का, इसमें ये राइट सेलेक्ट यहाँ है, रीड सेलेक्ट यहाँ है, रीड डेटा यहाँ है, 3 ट्रांजिस्टर DRAM.
ये कॉमनली यूज्ड वाला भी है, प्लस यही वाला जो सर्किट है ये तुम्हारे अक्सर डिजाइनिंग में भी यही यूज आता है और हम यही बनाए। बना लिया बेटा? ओके। One minute. Yes. No constraint exists. Reading is non-destructive. No special processes are needed. Value is stored on the storage node. Okay. Now DRAM में हम T1, T2, T3 तीन ट्रांजिस्टर है. So T1 जो रहता है वो बफर की तरह एक्ट करता है to drive the read data. T2 will act as a read select switch and T3 will act as a write select switch. So all of these transistors that requires minimum size and the so capacitors that is going to be used in a store charges are like this. ये इसमें क्लियर भी हो रहा है कि ये वाला जो ट्रांजिस्टर है एक रीड के काम में आ रहा है, एक राइट के काम में आ रहा है, एंड थर्ड वन इज फॉर दी बफर टू ड्राइव द रीड डेटा. ठीक है, डिफरेंस अपन वहां कर चुके हैं. ये डीरैम में इतना ही है तुम्हारा, ये दोनों डीरैम्स के डायग्राम और ये तुम्हें देख. ये एक क्वेश्चन हर ईयर में अल्टरनेटिव पूछते हैं, तुम ये अच्छे से कर लें. ठीक है, अभी थोड़ा अपन डायनेमिक उसके बारे में भी अभी टाइम है तो देख लेते हैं. अब तुम्हारे सस्टेनेबल की होगी, अगर क्लास कल हुई या सैटरडे जब भी लूंगी, फ्राइडे तो हॉलीडे है तो फ्राइडे में नहीं ले पाऊंगी. ठीक है, सो नाउ आई एम जस्ट स्टार्टिंग द इंट्रोडक्टरी पार्ट. अभी थोड़ा टाइम भी है और कर लो आप भी अटेंड. सो डायनेमिक ये बहुत ही इजी यूनिट है और ये यूनिट में तुम्हें अच्छा लगेगा, थोड़ा सा जैसे कॉम्प्लेक्सिटी भी नहीं है और ये. ठीक है,
आई डू एग्री, आज थोड़ा ज्यादा हो गया है। अंकित, कुणाल, वंदना, आंचल, बट ये है कि मॉर्निंग से ही मुझे था, तो कल तुम्हारी लैब तो रहेगी नहीं, सिर्फ सस्टेनेबल के 2 लेक्चर्स का है। सो विल सी, 2 या 1 जो भी लेना रहेगा, आई विल जस्ट लेट। ठीक है, सो नाउ आई एम स्टार्टिंग विद डायनेमिक सीमॉस सर्किट्स। दीज वर द कंटेंट जिसमें हमने बेसिक मेमोरी सर्किट। एंड एक और चीज ध्यान रखना, डीरेम एसरेम हमने डिटेल में किया है, बट बेसिक मेमोरी सर्किट पे भी समटाइम दीज पीपल यूज टू आस्क क्वेश्चन. What sort of question they used to ask? Like, what do you understand by basic memory unit? How the cache is used virtual? तो cache और virtual भी तुम्हें थोड़ा बहुत एग्जाम में पढ़ना है. ठीक है. Now I am coming to the point. That is dynamic CMOS logic circuit. As I told you before also, the dynamic CMOS circuit is none or other than, particularly as I used to design. हम जिस तरह से ये करते हैं ना, क्या कहते हैं तुम्हारे, हाइब्रिड पाई मॉडल और एच पैरामीटर में डिफरेंस है कि एच पैरामीटर में हम कंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, ये इफेक्ट नहीं देखते हैं. सिमिलरली हियर ऑल्सो हम जो है कंडक्टेंस और कैपेसिटेंस का इफेक्ट तो नहीं देखते हैं, बट यस ऑफ कोर्स इसमें हायर लेवल ऑफ मॉसेस के बारे में कि अगर हम कैपेसिटिव इफेक्ट देखना चाहें मॉसेस के डिजाइनिंग में तो किस तरह से. Fine. So dynamic logic is a temporary, or we can say the transient, in which the output levels will remain valid only for a certain period of time. ठीक है. और static logic जो है that retains its output level as long as the power is applied. So dynamic logic में मैं ये कह सकती हूँ that is it is normally done with charging and selectively discharging. मतलब चार्जिंग होगा इसमें और selectively discharging होगा. प्रीचार्ज क्लॉक मतलब इसमें अब जो है प्रीचार्ज और इवलेशन 2 चीजें होती हैं इसमें. ये बेसिक डायनेमिक इसका डायग्राम बना के बताऊंगी तब अपन क्लियर होगा ये प्रीचार्ज क्लॉक. लेकिन ये कुछ बेसिक पॉइंट है, ये तुम लिख लो, इसको मैं समझाऊंगी बाद में. बट अगर ये 2 वर्ड हमारे अगेन एंड अगेन पूरे ये टॉपिक जब तक चलेगा उसमें यूज होगा, दैट इज प्रीचार्ज एंड इवलेशन. सो दिस होल 5 पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट. That is dynamic logic in which output level will remain valid only for a certain period of time. इसमें आउटपुट जो है सर्टेन टाइम के लिए ही रहेगा. स्टैटिक लॉजिक जो होती है उसमें आउटपुट लेवल इज रिमेन एज द पावर इज अप्लाइड एज लॉन्ग एज पावर इज. दैट इज अ difference between static and a dynamic logic. And dynamic logic normally done with charging and selectively discharging capacitance. और मतलब ये हम ये तो कह ही रहे हैं कि इसमें सडन पीरियड ऑफ टाइम के लिए ही डेटा रहेगा. और दूसरा डायनेमिक लॉजिक जो है उसमें चार्जिंग एंड सेलेक्टिवली डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटेंस जो है वो नॉर्मली होता है. प्रीचार्ज क्लॉक जो है, प्रीचार्ज मीन्स होगा वी आर चार्जिंग द कैपेसिटेंस. सो प्रीचार्ज क्लॉक इज टू चार्ज द कैपेसिटेंस. इवलेट क्लॉक जो रहता है दैट इज टू डिस्चार्ज. इवलेट इज फॉर व्हाट? For what? So it is for the discharge the capacitance depending on the condition of the logic input. So whenever we say precharge process is going means my capacitor is charging, and evaluation means the way the voltage by which my circuit is charged, the same way it is discharged. So depending on the condition of the logic input. So evaluate clock is for what? To discharge the capacitance depending on the condition of logic input. ठीक है, ये लिख लो तुम. कुछ कुछ इसके स्टार्टिंग के पॉइंट ही इंपॉर्टेंट है जिसमें मैं टाइम दूंगी, उसके बाद नोरा जिपर ये सब बताऊंगी तो, लेकिन ऑपरेशन सेम है. राइट ऑन फास्ट बेटा.
Completed? लिखा क्या बेटा? Yes, ma'am. ओके, नाउ द सर्किट, जो बेसिक सर्किट है वो इस तरह से रहता है, डायनेमिक सीमॉस लॉजिक सर्किट। मीन्स जैसे बेसिक जो तुम्हारा मॉस रहता है उसमें क्या होता है जनरली, लाइक यू डोंट हैव दिस, यू जस्ट हैव ग्राउंड, ये मेरा VDD हो गया, दिस इज PMOS एंड दिस इज NMOS। ये CMOS सर्किट है। अगर मैं डायनामिक CMOS की बात कर रही हूँ तो उसमें अरे ऑफ NFETs या PFETs जो भी हमारी रिक्वायरमेंट रहेगी वो आ जाती है और वो सर्किट इस तरह से चेंज होगी। सो फर्स्ट यू नीड टू ड्रॉ दिस, एंड डायनामिक लॉजिक गेट यूजेस क्लॉकिंग एंड चार्ज स्टोरेज properties of the MOSFETs to implement the logic operation, and it provides a synchronized data flow which results in the valid only for the short period of the time, less transistor and may be faster than the static test that is going to be there. तुम ये सर्किट बना लो और ये 2 पॉइंट लिख लो, लाइक इट इज provide the synchronized data flow, also it is valid for the short period of time, and dynamic logic gate जो है that use the clocking and charge storage properties of the MOSFETs, that is to implement the logic operation. ठीक है, इसमें ये डायग्राम बना लो, ये डायनेमिक सीमॉस का है। देखो मॉस के बीच में क्या आ जाता है, NFETs। NFETs का मतलब है नंबर ऑफ एन मॉसेज आर देयर। यहाँ तो हमने 3 ही शो करे हैं, बट इट कुड बी मोर देन 100, 500 एंड सो ऑन। और एक कैपेसिटर हम यहाँ लगा दें। ये बहुत ही बेसिक सर्किट है, और जो डायनेमिक CMOS की वर्किंग होती है वो ये जो कैपेसिटर लगता है इसके प्रीचार्ज और रिवोल्यूशन पे होती है। प्रीचार्ज मीन्स my capacitor is charging up to what value, whatever input we are giving, and after charging to that certain limit it is start discharge। ठीक है, बना लिया बेटा? ये टॉपिक तुम्हें इंटरेस्टिंग लगेगा, मतलब आज तो थोड़ा अपन नहीं करें, नेक्स्ट वीक जब इसके आगे का अपन करेंगे। अब हार्डली इसमें 5-6 क्लासेस, ओके आंचल, 6 क्लासेस और हैं, लेकिन ये टॉपिक ऐसे पढ़ने में भी और ना मतलब टफ नहीं है, थियोरेटिकल कंसेप्ट्स है, बट दैट इज वेरी बेसिक फिजिक्स इज गोइंग टू बी देयर। ठीक है, नाउ सी, ये फाई जो है ये इनपुट है जो हम दोनों को दे रहे हैं, दिस इज अ कैपेसिटर। अब इसकी वर्किंग जो है वो मैं चाहूंगी कि मैं तुम्हें समझा भी रही हूँ और एक बार लिख लेना। वन टाइम आई एम टेलिंग यू टू राइट डाउन,
For other 5 circuit, Nora, Zipper, Domino, C square, MOS, the same concept is going to be there, but there you need not to be write the theory or the procedure. Only you need to make the diagram in that time. और इसमें से दो कोई से भी डायनेमिक सीमॉस तुम्हारे मिड टर्म में आएंगे. जो अभी पैटर्न था इसी तरह का पैटर्न रहेगा. जैसे 4 क्वेश्चंस थे ऑप्शन में, तो दो डायनेमिक कोई से भी डायनेमिक सीमॉस इसमें पूछे जाएंगे. ठीक है. Now clock 5 जो है drives a complementary pair of transistors Mn and Mp. NFETs क्या है? That is array between the output node and ground to perform the basic function. जो भी logical function होगा and or whatever we want to perform by that NFET, that is going to be there. When phi is 0, it is called the pre-charge. When phi is 1, it is evolution. Pre-charge phase means my capacitor is charging, that is my pre-charge phase. Phi 1 जब होगा, that is the evolution phase, means the capacitor start discharge. और जो pre-charge evolution की process रहेगी तुम्हारी 0 to 1. Pre-charge means my capacitor is charging, so in that time जब pre-charge जब भी होगा तब मेरा PMOS जो है वो on रहेगा और NMOS off रहेगा. Means it is going to be short circuit and Mn is going to be open circuit. And when evolate is going to be there, evolate मतलब capacitor start discharging, उस time पे हमारा NMOS on होगा और PMOS off. And this process is continue. एक पूरी cycle मतलब pre-charge to evolution phase में जो time लगेगा, that will be evaluated as my T. And this T is nothing but the evolution और pre-charge जो है उसके कॉम्बिनेशन में जो रहती है चीजें उसमें रहे. ठीक है, ये लिख लो. वही चीज बार बार रिपीट है, बट जो समरी है वो इस चीज में ही है. और नेक्स्ट क्लास में मैं तुम्हें ये बेसिक प्रॉपर्टीज और मेरिट डिमेरिट बता देती हूँ. नेक्स्ट क्लास में हम जो स्टार्ट करेंगे दैट इज प्रीचार्ज इवोल्यूशन लॉजिक. वन ऑन द सेम ही है, थोड़ा सा चेंज रहेगा, लेकिन यस यहाँ से. तो नेक्स्ट क्लास वॉट एवर इट इज गोइंग टू बी नेक्स्ट वीक आई मे लीव, लेकिन फिर भी 4 तारीख के बाद मैं छुट्टी पे, तो तुम्हारी क्लासेस हो जाएंगी. प्रीचार्ज इवोल्यूशन अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, बट अभी तुम एक बार ये बेसिक लिख लो और इसकी मेरिट्स डिमेरिट्स मैं तुम्हें समझा देती हूँ. देन वी आर एंडिंग द मीटिंग. ठीक है. लिख लिया बेटा?
Completed? Vandana, Achal, Ankit, Kunal. Okay. ma'am. Okay, fine. Simple इसकी terminology तुम्हें ये समझनी है because the same concept is going to use for all. Like this will be the circuitry. कई जगह यही चीज cascaded form में use होगी और ये NFETs जो है यहाँ कुछ भी logical operation like and or whatever you can perform here. And what is going to be happen when my PMOS is going to be on? This is my clock phase. तो जब यहाँ ये कब on होगा? जब ये 0 आएगा इसमें. तो when clock phase phi is 1, तो ये यहाँ के 0 हो जाएगा. तो ये पर्टिकुलरली जब ऑफ रहेगा तब कैपेसिटर चार्ज होगा. दैट इज माय प्री चार्ज फेज. और जब ये ऑफ होके ये ऑन होगा दैट इज अ इवोल्यूशन फेज. यही इसमें बताया है. फाई इज 0, पीमॉस फाई कब फाई जब 0 होगा तभी पीमॉस हमारा ऑन होगा और कैपेसिटर चार्ज होगा. फाई जब 1 होगा इन दैट टाइम एनमॉस इज गोइंग टू ऑन एंड कैपेसिटर इज जस्ट चार्ज. When my capacitor is charging, that is a pre-charge and this is a evolution. ठीक है. ये बेसिक चीज इसमें बताई है. फाइन. और इसके बाद ये कैस्केडिंग मेनली इसमें भी जब कैस्केडिंग हम करते हैं, कैस्केडिंग मतलब कैस्केडिंग प्रॉब्लम इन डायनेमिक इज व्हेन एक प्री-चार्ज इवोल्यूशन वाला सर्किट अगर हम मल्टीपल वे में यूज करना चाहें तो क्या प्रॉब्लम आती है कि when phi goes high to begin evaluate, all inputs at stage 1 require same finite time to resolve. मतलब कुछ इश्यूज हैं जब हम कैस्केडिंग करते हैं डायनेमिक सर्किट्स की तो हमारे आते हैं, उनको हमें रिजॉल्व करना. उन्हीं को रिजॉल्व करने के लिए ये जितनी दूसरी फेजेस हैं वो हैं. यहाँ से हम अब नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे. प्लीज गिव योर अटेंडेंस. और कल क्लासेस का जैसा भी रहा आई विल इन्फॉर्म. आंचल, अंकित, कुणाल, कीप योर अटेंडेंस बेटा. Present, ma'am. ओके. Okay, see you tomorrow.